Assalamualaikum dear students, this is Fatma Batul. On my YouTube channel, I am starting a reading vlog in which I am going to share with you the readings of Bertrand Russell on weekly basis. I have selected Russell because he is one of the most recommended writers for your English essay paper. And in Pressy and Composition papers, we often see that paragraphs from Russell's different writings have been given in Pressy and Comprehension question. Before we move on, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will be notified of my future videos. The Herd in Education is an essay written by Bertrand Russell. In essay paper, we come across multiple topics, and the best topics are those which have a direction. So, if this topic were on education, it wouldn't be a good topic to begin with because it would include almost everything. But right now, we see that the title is The Herd in Education. This word is giving this essay a direction. The title is helpful in understanding what the essay is all about. One of the most important factors in the formation of character is the influence of the herd upon the individual during childhood and youth. While reading something, look at the formation or composition of the paragraph. So अब हम इसको देखेंगे paragraph के तौर पर. One of the most important factors in the formation of character is the influence of the herd upon the individual during childhood and youth. What is one of the most important factors in the formation of character? The answer is the influence of the herd upon the individual during childhood and youth. So, this is the subject. और ये है हमारे पास वर्ब. अब जब हम इस सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं और ये हमारे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है और इससे पहले कोई इंट्रोडक्टरी रिमार्क भी नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्टली राइटर ने जो बात है वो शुरू कर दी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं कैरेक्टर की फॉर्मेशन में वो है हर्ड का इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल के ऊपर दो मुकामात पे, टाइम स्पैन भी है, चाइल्डहुड एंड यूथ. Many failures of integration in personality result from the conflict between two different herds to both of which a child belongs. So, ये जो पहला जुमला था ये हमारा टॉपिक सेंटेंस था. टॉपिक सेंटेंस क्यों था? क्योंकि डायरेक्टली राइटर जो है वो बात पर आ गया, उसने बात इधर उधर घुमाई नहीं है. उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज अ हर्ड और व्हाट इज मेंट बाय अ हर्ड और हाउ इम्पोर्टेंट अ हर्ड इज फॉर एन इंडिविजुअल or an individual's personality. Nothing like that was written over here. The writer is starting with the main point. अब उसके बाद उसने हमें दूसरी बात ये कही कि many failures of integration and personality result from the conflict between two different herds to both of which a child belongs. अब ये जो many failures of integration in personality है, ये आप देखें कि ये वाला जो जुमला है ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस को समझने में मदद दे रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि जो कैरेक्टर है उस पर इन्फ्लुएंस होता है हर्ड का. यानी अब ये हर्ड क्या है? अ क्राउड स्पेशली ऑफ ऑर्डिनरी और अनडिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स और थिंग्स. सो हर्ड एक ग्रोह है जिससे हमारा ताल्लुक होता है, जिसमें ऑर्डिनरी लोग पाए जाते हैं. ठीक है. सो अब जो इन्फ्लुएंस है हर्ड का इंडिविजुअल के ऊपर वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या. द एक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ रेशियल और रिलीजियस ग्रुप इनटू अ कम्युनिटी. जब हम किसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, शामिल कर लेते हैं. व्हेन अ पर्सनालिटी फेल्स टू इंटीग्रेट, तो उसकी वजह क्या होती है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट between two different herds to which the individual belongs. तो गड़बड़ क्या हुई कि जो इंडिविजुअल जो है वो दो हर्ड से, दो ग्रोहों से ताल्लुक रखता है और उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है. When you are reading something, look for the meaning of some very basic words. Conflict is an open clash between two opposing groups or individuals. तो बहुत छोटे छोटे जो आम अल्फाज आते हैं उनका एक दफ़ा मानी देख लिया करें, क्योंकि अगर आप कल एस्से के पेपर में बैठे होंगे तो आपके काम वही नॉलेज आएगी जो कि आपने ऐसे रैंडम इकट्ठी की होगी. जो फेलियर ऑफ इंटीग्रेशन इन पर्सनैलिटी है, इसकी वजह है वो कॉन्फ्लिक्ट जो दो डिफरेंट हर्ड्स के दरमियान में पाया जाता है.
इसमें राइटर ने आप देखें कि इंडिविजुअल की जब बात की थी, तो इंडिविजुअल को चाइल्डहुड में भी प्लेस किया था और यूथ में भी। और अब आप देखें कि वो बात कर रहा है इंडिविजुअल की एज अ चाइल्ड, ठीक है? While others arise from conflicts between the herd and individual taste। तो फिर इंसान की जिंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि आपका ताल्लुक दो गिरोहों से है और वो दोनों गिरोह जो हैं वो आपस में मुतसादिम हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप और जिस ग्रुप से आपका ताल्लुक है, उनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक वजह हो सकती है। It should be an important consideration in education to secure that the influence of the herd is not excessive and that its oppositions are beneficial rather than harmful. So एक important consideration एजुकेशन का जो हम प्रोसेस है, एजुकेशन के हसूल का जो हमारा पूरा एक निज़ाम है, उसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी हर्ड का, किसी भी ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है, वो एक्सेसिव ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और दैट इट्स ऑपरेशंस आर बेनिफिशियल रादर देन हार्मफुल। और ये जो हर्ड का इन्फ्लुएंस है थोड़ा ज्यादा, पहले तो हमने उसको लिमिट करना है कि वो बहुत ज्यादा ना हो। दूसरी बात ये कि जो उसका इन्फ्लुएंस है वो बेनिफिशियल हो, हार्मफुल ना हो। Most young people are subject to the operation of two different kinds of herd. So ज्यादातर लोगों के अंदर, यंग लोगों के अंदर, अब आप ये देखें कि उसने जो हमें बात की थी चाइल्डहुड की और फिर उसने हमें बात की थी यूथ की। उसने पहले जिस चीज को डिस्कस किया वो था चाइल्ड, और अब वो बात कर रहा है यंग पीपल। सो ही इज टॉकिंग अबाउट यूथ, ठीक है? सो जो आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी जो वोकेबलरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से अपने पैराग्राफ में यूनिटी को इंश्योर करते हैं। यूनिटी आइडिया से भी आती है, यूनिटी लैंग्वेज से भी आती है। सो ये हमें लैंग्वेज में भी यूनिटी नजर आ रही है, और ऑब्वियसली द यूनिटी इन लैंग्वेज इज रेसिप्रोकेटिंग द यूनिटी इन आइडिया। Many young people are subject to the operation of two different kinds of herd. So ये जो दो तरह का herd है उसका influence हमें नजर आता है बहुत सारे young लोगों में, which may be called respectively the great herd and the small herd. The next sentence informed us that the influence of a herd should not be excessive and the influence should be beneficial. अब जब हम तीसरे जुमले में जाते हैं तो हमारे पास आइडिया ये आया कि दो तरह के ग्रुप हैं जो इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक ग्रेट हर्ड है और एक स्मॉल हर्ड है, ठीक है? सो ये वाला जो आपके पास एक्सप्लेनेशन थी मेन आइडिया की, वो ये दूसरे और तीसरे सेंटेंस में पूरी हो गई। सो फर्स्ट सेंटेंस था आपका टॉपिक सेंटेंस, और आपका दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस है उसको मैं रखूंगी सपोर्टिंग डिटेल के अंदर। सो दिस इज सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1। बस दूसरी सपोर्टिंग डिटेल शुरू हुई। दूसरी सपोर्टिंग डिटेल इसलिए क्योंकि अब वो कैटेगराइज कर रहा है कि एक ग्रेट हर्ड है, एक स्मॉल हर्ड है। द ग्रेट हर्ड इज वन कंपोज नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ यंग पीपल बट ऑफ द होल सोसाइटी टू विच द चाइल्ड बिलोंग्स। सो अब ऐसा नहीं है कि अगर वो नौजवान है और उसके ऊपर किसी ग्रोह का असर है तो वो यंग लोगों का होगा। बड़ा ग्रोह वो है जिसमें मुआशरे के ज्यादा लोग शामिल हैं, ना कि नौजवान तबका। This is determined in the main by the child's home, except where there is a very definite conflict between home and school, as happens, for example, with the children of immigrants in the United States. अब उसने हमें समझाया कि ये जो दिस इज डिटर्मिन्ड इन द मेन बाय द चाइल्ड्स होम, तो ये जो आपका ग्रेट हर्ड है जिसकी उसने पहले पहले बात की है, ग्रेट हर्ड जो है ये यूजुअली डिटर्मिन होता है आपके घर से, सवाए उन मौके के या उन ओकेजन्स के जहाँ पे आपके घर और आपके स्कूल के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट हो। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आप इमिग्रेंट फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है? अब इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं हु मूव टू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, ठीक है? सो अगर आप इमिग्रेंट हैं और आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपके घर और आपके स्कूल के दरमियान में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होती है, और आप ये देखें कि ये वही कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड है जो कि हमने ऊपर भी देखा था, और ये लफ्ज अब बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक? अब ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट के सिनोनिम 10 याद कर लेने हैं, इससे फायदा नहीं होगा। आपका आइडिया चेंज हो रहा है, और जब आइडिया चेंज हो रहा होता है तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आप अपने उसी लफ्ज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। During the time that a boy or girl spends at school, the great herd is, however, of less importance than the small herd consisting of school fellows. तो एक जो बड़ा हर्ड है वो आपका
घर है, दूसरा जो है वो आपका स्कूल है। अब जब लड़का और लड़की स्कूल में होते हैं तो जो ग्रेट हर्ड है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो छोटा आपका ग्रोह है, एवरी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन हैबिचुअल क्लोज प्रॉक्सिमिटी डेवलप्स अ हर्ड फीलिंग which is shown in a certain instinctive uniformity of behavior and in hostility to any individual having the same proximity but not felt as one of the group. अब आप देखें कि पहले उसने हमसे बात की कि एक ग्रेट हर्ड है और एक स्मॉल हर्ड है, और अब आप देखें कि वो उस आइडिया से आगे मूव कर गया है। नेक्स्ट आइडिया इज दिस दैट एवरी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन हैबिचुअल क्लोज प्रॉक्सिमिटी डेवलप्स अ हर्ड फीलिंग। सो हमारी जो सेकंड सपोर्टिंग डिटेल थी वो यहाँ पे खत्म हो गई, और अब हमारी थर्ड सपोर्टिंग डिटेल शुरू हुई एवरी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स से। सो what develops a herd feeling? Every collection of human beings in habitual close proximity. क्या डेवलप करती है? एक हर्ड फीलिंग। अब पहले वो हर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करा था, अब उसने हर्ड फीलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। Might have come across the questions in which in a given paragraph a word is underlined. तो वो अंडरलाइन कर देते हैं और आपसे कहते हैं give meaning of the underlined word. वहां पे आपकी मेमोरी चेक नहीं होती कि लफ्ज अंडरलाइन कर दिया, आप अपनी मेमोरी से बताएं कि इसका मानी क्या है। उसी पैराग्राफ के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ आती है कि मानी क्या है, या उसी पैराग्राफ के अंदर उस लफ्ज का सिनोनिम मौजूद होता है। अब आप ये देखें कि वो हर्ड हर्ड वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा है। सो एक हर्ड क्या है? ग्रो है। सो यहाँ पे देखें, इस जुमले के शुरू में वो आपको डेफिनेशन दे रहा है, एवरी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज हर्ड, यानी एवरी ह्यूमन हर्ड डेवलप्स अ हर्ड फीलिंग, यानी वो लोग, इंसान जो कि एक हैबिचुअल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, वो एक हर्ड फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या है? इट्स द रीजन क्लोज अराउंड अ पर्सन और थिंग, यानी आपके करीब की जो जगह होती है, इलाका होता है, या जो लोग होते हैं। सो वो लोग जो एक दूसरे के करीब रहते हैं वो एक हर्ड फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, विच इज शोन इन अ सर्टन इंस्टिंक्टिव यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। और ये हमें नजर कैसे आती है, एग्जिबिट कैसे होती है, कि वो जो इंसान है वो एक खास तरह की इंस्टिंक्टिव यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्या है? एक जैसा होना, ठीक है। लोग जो है वो एक जैसा रवैया जो है वो दिखाते हैं इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिव से मुराद होती है अनथिंकिंगली, prompted by instinct, not thinking about it, you are doing it naturally, ठीक है। सो इंसान जो होते हैं वो एक जैसे रवैये के जरिए इस हर्ड फीलिंग को शो करते हैं। इन हॉस्टिलिटी to an individual having the same proximity but not felt as one of the group. सो ये शो होती है जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमारी प्रोक्सिमिटी में आता है, यानी हमारे इर्द गिर्द के इलाके में आता है, लेकिन वो हमारे ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, तो हम उसको हॉस्टिलिटी शो करते हैं। हॉस्टिलिटी इज इल विल, एनमिटी, एग्रेशन। सो हम किसी नए शख्स को जो हमारे इलाके में आता है उसके लिए हॉस्टाइल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये उसने हमें तीसरी बात बताई कि हम एक जैसा बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। अब आप देखें, ऊपर भी जैसे उसने मिसाल दी थी कि इमिग्रेंट्स हैं, जो कि इमिग्रेंट फैमिलीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। अब यहाँ पे भी उसने हमें समझाया कि एवरी न्यू बॉय एट स्कूल हैज टू सबमिट टू अ सर्टेन पीरियड ड्यूरिंग विच ही इज रिगार्डेड with unfriendly suspicion by those who are already incorporated in the school herd. अब जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है तो एक खास वक्त के लिए उस बच्चे को सस्पिशन का सामना करना पड़ता है उन दूसरे बच्चों की तरफ से जो कि स्कूल का हर्ड है, ठीक है। तो वो स्कूल में जो एक हर्ड फीलिंग आ गई है बच्चों के अंदर जो एक ही क्लास का हिस्सा है, जब उस क्लास में एक नया बच्चा आता है तो उसको एनमिटी, हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है, और वो एनमिटी और हॉस्टिलिटी जो है उसकी शक्ल क्या है? सस्पिशन की शक्ल में। अच्छा, अब ये सस्पिशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट मीन्स डाउट अबाउट समवन्स ऑनेस्टी, व्हेन यू आर डाउटिंग समवन, सो उसको डाउट किया जाता है। इफ द बॉय इज इन नो वे पिकुलियर ही इज प्रेजेंटली एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द ग्रुप। अगर उस लड़के में कोई अजीब खूबी नहीं है, वो बहुत पिकुलियर नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्रुप का एक मेंबर के तौर पे, एंड कम्स टू एक्ट एज द अदर्स एक्ट, ठीक है। और वो जो बच्चा है, ये देखें, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज
एक्सेप्टेड, और ही का ही आपके पास वर्ब है आगे, ही कम्स टू एक्ट एज द अदर्स एक्ट। वो भी वैसे ही काम करने लगता है, वैसा ही रवैया इख्तियार कर लेता है जैसा दूसरे लोगों का होता है। टू फील एज दे फील, जैसे वो महसूस करते हैं वैसे वो भी महसूस करता है। एंड टू थिंक एज दे थिंक। अब ये किस चीज की मिसाल है? ये जुमला पूरा मिसाल है उस चीज की जिसे वो कह रहा था कि लोग जो हैं वो एक हर्ड फीलिंग डेवलप करते हैं, और वो हर्ड फीलिंग क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सो वो बच्चे के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर आ जाती है। लेकिन अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है? इफ ऑन द अदर हैंड वी सी दिस ट्रांजिशनल वर्ड ओवर हियर, ऑन द अदर हैंड, इफ ही इज इन एनी वे अनयूजुअल, one of two things may happen. I've just told you that the writer often gives us synonym or definition of the words that he has used in the same paragraph. तो अभी हमारे पास एक लफ्ज आया peculiar, हमें पिकुलियर का मानी नहीं पता। अब आप देखें अगले जुमले में वो कह रहा है इफ ऑन द अदर हैंड ही इज इन एनी वे अनयूजुअल। ठीक है, सो उसने कहा था कि इज इन नो वे पिकुलियर, यानी उसने कहा था कि वो पिकुलियर नहीं है। सो हमें यहाँ पे पिकुलियर का मानी मिल गया अनयूजुअल। ठीक है, सो वो कहता है कि अगर बच्चा किसी भी तरह से अनयूजुअल हो तो दो में से एक चीज होगी। यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल हुआ है, अब वो आपको गिनवाएगा कि दो चीजें कौन सी हैं। He may become the leader of the herd और he may remain a persecuted oddity। अब दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है कि या तो वो एक गिरोह का लीडर बन जाएगा, और दूसरा ये होगा कि वो persecuted oddity बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा हमारे पास एक लफ्ज मुश्किल आ गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि persecuted जो है दैट्स एन एडजेक्टिव ओवर हियर, oddity is the noun। ठीक, oddity is eccentricity, it's unusual behavior, it's being peculiar। So oddity का लफ्ज वही मानी दे रहा है जो कि हमारे पास peculiar का वर्ड दे रहा था और unusual का वर्ड दे रहा था, तो इसका मानी वही है। अब बचा लफ्ज persecuted, तो persecuted से मुराद है सफरिंग, जिस जो सफर करता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये अगर हमें persecuted का मानी ना भी पता हो तो हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ आ रहा है, यानी या तो वो लीडर बन जाएगा, तो लीडर तो वो है जो कि गवर्न करेगा, जो अपने आप को इम्पोज करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो परसिक्यूटेड हो जाएगा। अब जो परसिक्यूट होगा वो सफर करेगा। ठीक है, तो उसको सफर करना पड़ेगा एज एन ऑड मैन आउट। Some very few, by combining unusual good nature with eccentricity, may become licensed lunatics, like mad Shelley at Eton। अब यहाँ पे वो हमें आखिरी जुमले में कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कंबाइन करेंगे अनयूजुअल गुड नेचर को विद एक्सेंट्रिसिटी। सो बहुत कम लोग होंगे जो अपनी अच्छी नेचर को अपने अनयूजुअल बिहेवियर के साथ कंबाइन करेंगे और वो एक लाइसेंस्ड लूनेटिक्स बन जाएंगे। लाइसेंस्ड क्या? जिन्हें माना जाता है, मतलब आप उनको एक सनद लगा देते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा ही है। ठीक है, लुनेटिक्स का मतलब क्या है? अ रेकलेस इम्पेचुअस इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, एन इनसेन पर्सन, जिसे हम पागल कहते हैं, खपती कहते हैं। सो वो एक लाइसेंस लूनेटिक बन जाएंगे, लाइक मैड शेले एट ईटन। अब यहाँ पे जो शेले का रेफरेंस आया है, दैट इज पीबी शेले, हु वाज अ वेरी फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट। और शेले जो है उसने बहुत सारे, जैसे रीनोन लोग जो थे वो ईटन से पढ़ते थे, वो भी वहां से पढ़ा था। एंड ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु आर नोन फॉर देयर एक्सेंट्रिक बिहेवियर। अब ये हमारी जो तीसरी सपोर्टिंग डिटेल थी वो यहाँ पर आकर खत्म हुई। तो हमने इस पैराग्राफ में देखा कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग डिटेल कितनी है, तो हमें 3 सपोर्टिंग डिटेल्स मिली। और आप ये देखें कि इस पैराग्राफ के अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं आया। So that you have to keep in mind is that not all paragraphs have a concluding sentence. Two things that a paragraph should have, one is topic sentence and the other one is supporting detail. आप रीडिंग के साथ एक काम और कर सकते हैं कि जब आप सेंटेंस को देखें तो नोट किया करें कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। In this paragraph, I have underlined all the verbs that have been used, and we have to look at them to find out whether they are active voice or passive voice. One of the most important factors, आप पहले सेंटेंस में देखें, is लगा हुआ है, तो is है लिंकिंग वर्ब। जब हमारे पास लिंकिंग वर्ब अकेला होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो एक्टिव पैसिव नहीं होता।
ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस है, अराइज इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस, बिलोंग्स इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस, और ये तीनों जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हैं। शुड भी आपका पैसिव वॉइस है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, आर आपका लिंकिंग वर्ब है, आर सब्जेक्ट, ये आर जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, मे बी कॉल्ड आपका पैसिव वॉइस है, इज कंपोज्ड ये भी आपका पैसिव वॉइस है, इज डिटर्मिन्ड आपका पैसिव वॉइस है, इज अ कॉन्फ्लिक्ट ये आपका लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से आगे देखें, इज ये भी आपका लिंकिंग वर्ब है, डिवेलप्स आपका डायरेक्ट डिवेलप्स आपका एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, इज शोन आपका पैसिव वॉइस है, हैज आपका लिंकिंग वर्ब है, आर इनकॉर्पोरेटेड आपका पैसिव वॉइस है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इज ये आपका लिंकिंग वर्ब है, इज एक्सेप्टेड आपका पैसिव वॉइस है, कम्स आपका एक्टिव वॉइस है, मे हैपन आपका एक्टिव वॉइस है, मे बिकम एक्टिव वॉइस है, मे रिमेन एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे भी मे बिकम आपका एक्टिव वॉइस है। इतना छोटा सा काम अगर आप अपनी रीडिंग के दौरान कर लें तो बिलीव यू मी आपके टेंसेस, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ओवरनाइट इम्प्रूव करेगा। और ये वो काम है जो आपको रीडिंग के दौरान करना चाहिए, दैट यू मस्ट बी नोटिसिंग वेदर द वर्ब दैट हैज़ बीन यूज्ड इज active or passive. I believe this video is helping you in understanding the ideas that are being written by Russell and the kind of writing that he has adopted. I understand that reading takes time, but by devoting time to reading, you can polish your reading skills. And once you polish this skill, it's going to help you out for the rest of your life. It's not about passing or competing in one examination, it's having the ability to enjoy a book. Thank you so much for your love and appreciation. I'll see you next week with another reading vlog.